columns. We have already discussed columns in mechanics of materials, so you already know the basic formula, the formula for concentrically loaded long column, the Euler's formula. You already know that. So we're going straight to this formula, the Euler's formula. Okay. So I'll not be discussing the mathematical derivation. This is the equation on which the Euler's formula is actually based. Okay. So then, by substituting the value for n and then solving the differential equation, you have already derived this expression. Okay. P critical equal to pi square EI over LE square. Okay. So now P critical is a critical buckling load, IR critical buckling load. E is the hardness of elasticity of the material of which the column is made, and I is the moment of inertia. Cross section. And LE effective length of the column. LE is the effective length of the column, and you can often write LE as K times LE, where K is the effective length factor, okay, which depends upon the end conditions. And you know that K is equal to 1.0 for pin connection in both ends pin supports. It means the column is like this. Okay. End at the top, straight at the bottom. And it is 0.5 for a fixed connection. It means fixed supports. It means that column is fixed at the top as well as bottom. Okay? If it is fixed at the bottom and pinned at the top, you know the diagram? Something like this, then it is 0.7. Okay. And if it is just 1 6 support at the bottom and 3 at the top, that is 2.0. Effective length factor. Alright, so in the sample problem you will see different types of problems. We are only limiting ourselves to the analysis types of problem, which means you're given the cross section, you're given the length, you're given the fixed the support conditions, and all you need to do is calculate the capacity. Okay, so although the problem says, problem paper 1 says select the lightest W shape, which means they're asking you to design. We're not going to discuss design in this course. Okay, so you have a separate course for design. In fact, you've already designed compression members in steel structures, so we will not be discussing the design.
bit. So let me take you to one of the problems in the chapter. So let's look at the first problem maybe. A simply supported steel column is 8 feet long and has a square cross section of side length D. Okay, if the column is to support a 22 kip axial load, determine the smallest value of V that would prevent buckling. Use E equal to 29 into 10 per 6 psi for steel. Okay, so the problem may be given in different forms. If you are given the cross section, then you know the I value. Okay, if you're given the LE, you know LE are the support conditions and the length, you know LE, and you will be able to calculate its P value. The other way to ask this question is, you are given that we have to support a certain load. To support that load, what should be the minimum I value in order to support that load? Okay, and once you know the I value for a square cross section or a circular cross section, you can calculate the dimensions because you need just one. The cross section, the I is determined by just one parameter. Square case into 8 sided, that is going to determine. And if it is a circular cross section, the only thing you need is the diameter. Okay, so we'll see how to deal with such problems. So let's see. It means we need to have this value equal to 22 kip. It says we have to support a 22 kip axial load, which means we need a column whose P critical is at least 22 kip. Okay, so it means we can write it down like this: 22 kip. I'm putting the value for P critical. Okay, we need a column which has a P critical of at least 22 kip. Okay, so if there is a P critical of 22 kip, then pi square radian pi square E value is 29,000 KSI. Okay, we are putting the values in KSI because this is in kips. Okay, kip per square inch instead of PSI. Okay, and then we don't know the cross section. They are actually telling us that we need to. This is B. This is a square cross section. Whose I value would be given. How would you calculate the I value? BH cube by 12. BH cube by 12. So B is B and H is also in this case B. So B raised to 4 by 12. B times B cube by 12. Okay. So we don't know the I value right now, although we can just put the values in terms of B right here in the equation. We can do that, but let me just show you how to deal with it. Let's put I equal to I. If we don't know the I as it is, and now we just put I as I. Divided by LE squared. Now, it is a simply supported steel column, which means it is thin pin support, which means K value is 1.0 times LE is, so the L value is 8 feet. Now, pay attention. This is in kip per square inch, okay? Which means for this, you are using the inch units for the distance terms, okay? So you will have to put this in inches. This is 96 inches, okay? Square. Okay, all of it is squared. All of it is squared. KL squared. Okay? So you can calculate the minimum I value required. Please do the calculation. K का स्क्वायर तो नहीं आता. Sorry. The problem says it is a simply supported column, which means it is a thin pin support, which means K value is 1. नहीं मैं कह रहा हूँ स्क्वायर नहीं आता उसका. आप कह रहे हैं सिर्फ इसका स्क्वायर नहीं. In this case, it would not make a difference, but the expression is actually asking to square K times L because it is LE squared KL whole. Okay, that is good. Okay, so K what I, that is the minimum I you need. What should be K piano I value?
raised to the power 4. Now from this we should know that you need a column which is the minimum height of this. Okay? Now if it is a square column, it means I'm putting the value for I as b raised to 4 over 12 equal to 0.708 inches per 4. Now you can calculate the b value, minimum b value required. Okay, we'll do the calculations quickly. This is the minimum B value required for the column in order to have a P3 or P22 kit. Okay? Fine. If it were a circular column, solid circular column, in that case, this would have been the same calculation. The only difference would have been over here. We would have substituted this instead of this. Okay? Clear? And then we will be able to solve this part B. Alright? What if it were a rectangle? Yeah, if it was a cross section like this, solid circular cross section with a minimum place of the D of within diameter D, then this would have been the same process. For this value, instead of this value for I, we will insert this value and then solve for D minimum required. Okay? Make sense? If it were a rectangular cross section, in that case, because I value does not depend on just one dimension, so in that case you will have to make an assumption regarding the ratio of H and B. For example, you may say B is 1.5 times H, or whatever you are coming up with. Okay? You will have to come up with a relationship between B and H. You're taking it on your own. Okay? So, and then you can solve it. The second problem, 10.2, is read problem 10.2. It says solve problem 10.1, same problem, with a different E value, because if it is made of both, it would have a different E value. In that case, the only difference would have been over here. Instead of 29,000 KSI, you would be putting 1.6 into 10 to the power 3 KSI. Okay? Same problem. Alright, 10.3 says we have it's a 40 millimeter by 40 millimeter timber, okay? 40 by 80, sorry. This is 80. And this is 40. Okay? Okay, so let's get to problem 10.3. It says it's a 40 millimeter, 80 millimeter timber, 2.2 meter long. It's used as a column with built-in ends. What does it mean? Fixed support, fixed ends.
gigapascal, and gigapascal is sigma proportional limit, which means yield strength in 30 megapascal. Determine the largest axial load that can be carried with a factor of safety of 2. Okay? Alright, so in this case, we're given the cross section, which means we can calculate the I value. Okay? So you can calculate the I value. Now, you need to know that I is always with respect to certain axis. I, moment of inertia, is always with respect to certain axis. And you know the I value, if I give them some of the names, maybe x and y, then Ix in this case, for the levels that I'm using right now, Ix would be B times, I would say it is 80 times 40 cube over 12, and Iy would be 40 times 80 cube over 12. Okay? Now, you know the expression over here for P critical. Okay? If I use, so which one is bigger? Iy. This is the larger number. Okay? This is a smaller number. Okay? If you put a larger number over here, you get a bigger answer for P critical. If you put a smaller number, you get a smaller number for P critical. Now, a column may buckle about x-axis or about y-axis. Let me explain to you with the help of this duster. If this is a column, then if it has same supports for both directions. There are two possibilities for it to buckle. One is that if you put a load on it, it will buckle this way. Okay, this is one possibility. Now this is buckling about this axis. Okay, ये वाला जो बड़ी dimension वाला axis है ये वाला. What is the other possibility? It buckles this way. It means it is buckling about this axis. It is gonna buckle about that axis, which is smaller moment of inertia. Okay, so what do you think? If I put a load on it, how should it buckle? One option, option two. Option 1. Option 1. Okay, think of a ruler, scale. Okay, if you put a load on it, how is it going to buckle? About the axis, which is lower moment of inertia. Okay, yes, any questions? So, the moment of inertia about this axis is a smaller number. Okay, so this is going to govern. It will buckle about x-axis before it can buckle about y, because it is going to buckle about the weaker axis. Okay? So you're going to use the smaller number over here, always. If the LE is same for both cases. Sometimes supports can be different for both bending, but I'm not discussing that right now. So I is 80 times 40 cube over 12. What's the answer? What's the answer? 80 times 40 cube over 12. 42. 42. 42 is equal to 4. 42.6. I shouldn't have a point over here. Yes, sir. 42.67. 42.6. Oh, is it? You like me over here. All right. This is the answer. Millimeter is what? Or it makes sense. It is 2.2 meter long, which means L is 2.2 meter. Let's write it down to 200 millimeters. And since it is built-in and fixed, so what should be K? Half. Which means LE is 0.5 times 200, which is 1100 millimeters. Okay? What else? E value is 10
gigapascal. Okay. So I'm going to say 10,000 megapascal. Megapascal means Newton per millimeter. square. Okay. 10,000. Why I'm using it in megapascal, not gigapascal? What's the reason for that? Unit consistency. I want to stay consistent. Okay, I want to have millimeter square over here. Okay, because I'm using millimeter for other dimensions. So now, we're not discussing. The problem created because there are determine the largest axial load. बस अभी सिर्फ यही तक करना है आपने. पहले ये करते हैं, बाद में फैक्टर की बात करते हैं. Let's first determine its capacity. Okay, इसकी capacity largest का word इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो weaker axis है ना बस वही उसका largest है. तो उससे आगे उससे नहीं जाना. Weaker axis वाले को बोल करेंगे. So let's calculate its P critical first. इसकी ये कितने लोड पे इसमें बकल हो रहे बस ये प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं by using this equation first. Pi square EI. What is E? 10,000 megapascal times I is 42.6 10 to the power 4. Okay, divided by 1100 square. That's right. You were expecting the answer in meter or kilometer? Newton. How do you get to know that? This is in Newton per millimeter square. This is millimeters per 4, this is millimeter square. Okay? So what do you get there? कैलकुलेशन नहीं हो सकती यार इनसे. 3471 Newton. Okay? Yes, the pre-critical. Now come back to the statement. It says determine the largest axial load that can be carried with a factor of safety of 2. अब इसमें फेल होना है, बकल होना है 3471 न्यूटन पे. 712 है. 712. Okay. 3471. Okay. Here. इस लोड को उसने क्या बनाना है? बकल. वो कौन सा लोड होगा? वो कौन सी इसकी कैपेसिटी पे इस लोड पे उसने फेल हो जाना है. तो अगर मैं इसकी कैपेसिटी रेटिंग देनी हो कि इसकी कैपेसिटी रेटिंग क्या है और मैं फैक्टर से 2 दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे कहूंगा इससे जो हाफ जो लोड है ना उस कैपेसिटी पे आपका उस लोड पे अगर आपका हाफ करें तो कितना बनेगा? 17,356. 17,356. 17.3 Yes sir. किलोमीटर. ओके Yes. 17.3 इस लोड पे इसकी ये फैक्टर सेफ्टी ऑफ 2 होगा मेरे पास. जैसे लोड फेल होना है उससे आगे लोड लगाओ तो फैक्टर सेफ्टी कितना होगा? This is the capacity with a factor safety of 2. ये कैपेसिटी है with no factor safety. आप उससे की फैक्टर सेफ्टी 1. ओके 2 के फैक्टर सेफ्टी ऑफ 2 वाली कैपेसिटी चाहिए आपको इसको हाफ कर दें. 1.5 वाली चाहिए इसको 1.5 से डिवाइड कर दें. करेंगे सिंपल. So you can do as many problems as you like. You can go just keep scrolling down and finding other problems. I'm going to take you to the design formulas for intermediate column. We're not discussing intermediate column. These are some empirical equations which really don't make any sense to me. I mean, AISC specifications are seen for, we have already studied that. Compression member design. You have seen these equations, okay? I'm sure you've used these equations. So we're not discussing the design over here, so we're not discussing the AISC specifications, okay? American Institute for Steel Construction. I'm going to take you to the problem which you have not seen before, okay? So that is eccentric loading. The secant formula. You have studied ILS formula, that's something
familiar. But what you're not studying, which is the purpose of this course, to take a little bit higher to the higher level, is the eccentric loading, secant formula. Okay? Centrically loaded, बिल्कुल सेंटर के ऊपर और कॉलम भी परफेक्ट है. यही पढ़ा है ना आपने? लॉन्ग कॉलम है और कंसेंट्रिकली लोडेड है, तो फिर तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा. पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता. Columns are almost always eccentrically loaded. So again, rather than discussing the derivation, let me show you the figure only, because that's what we're going to be concerned with. Okay? Okay, so this is the terminology we're going to use. Look at the column, figure number 8. Figure 8, look at the column. It is, okay, this is the column, and we have some attachments at the ends, okay, through which we are applying the load to the column. This is load P, there's direction, load P, okay, and what's this? This is the E, eccentricity of the load. क्रॉस सेक्शन के सेंट्रॉइड से लेके ये क्रॉस सेक्शन का सेंट्रॉइड है, इससे आप जितना हटते जाएंगे उतनी आपकी एक्सेंट्रिसिटी बढ़ती जाएगी. ओके, E band. And the rest of the terms are similar. This is total length L, and of course the column is going to buckle bend this way, and there is going to be some deflection everywhere. It's going to be maximum a bit high. We're not discussing the deflection right now, but this is what the situation right now is. Okay, so again, let me take you to the final expression, because it's all the differential equations you've got to solve. So this is what we're going to end up with. Sigma max equal to Dy This is secant formula. Like Euler's formula, this is secant. This is not secant formula because there are term secant of something. Okay? All right. Now, why we call it sigma max? Look, if this is the cross section, let me tell you, if it is a rectangular cross section, it will look something like this. This is the centroid. Okay? And if the load is, for example, over here, P value, at an eccentricity of E, then in that case, you can imagine the deformed shape of this column. Okay? Something like this. ऐसे ही होगा? किस साइड में टेंशन होगी, किस साइड में कंप्रेशन होगी? On the right we will have compression. On the left we will have tension. ऐसे ही एक तरफ tension एक तरफ compression. ये tendency लेकिन बात कर रहा हूँ मैं tendency की. यानी कि tendency का मतलब क्या है? ऐसे let me give you a quick example. कि हम इसको कर कैसे रहे होते हैं? अगर ऐसे लोड लग रहा है, कोई एक्सेंट्रिसिटी नहीं है,
तो आप स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? D/8 ऐसे ही है, सिंपल। अगर यहाँ पे लोड नहीं लग रहा बल्कि इस जगह पे लग रहा है, तो फिर दो फिनोमेनन हो रहे हैं। एक फिनोमेनन क्या हो रहा है कि लोड, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू दिस, सेम कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे लोड सेंटर में रख दिया। अच्छा अगर ये लोड सेंटर में, अच्छा ये लोड अगर सेंटर में लग रहा होता तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा होता? ओके, प्लस ये यहाँ पे लगने की वजह से साथ में एक्सियल लोड के साथ साथ मोमेंट भी अप्लाई कर रहा है इस तरह से, ठीक। तो मैं इसको दूसरा जो इसका पार्ट है, जो एक्शन है, वो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस m is p times e, जितना लोड और जितने एक्सेंट्रिसिटी इसका प्रोडक्ट है इट्स मोमेंट। ऐसे ही थोड़ा ऐसे कैलकुलेट करते हैं। दो एक्शन हो रहे हैं इस केस में, एक्सियल लोड का एक्शन और बेंडिंग एक्शन, दोनों एक्शंस कंबाइंड होके फाइनल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसकी बात करो, इसकी वजह से कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? P/A, और ये कंप्रेसिव में होगा ना, एग्री, कंप्रेसिव में होगा ये। सो दिस इज मेरी, अच्छा इसका मतलब है अगर मैं लिख रहा हूँ प्लस P/A, मतलब लेकिन ना इसका खाली P/A अगर मैं लिख रहा हूँ ना कंप्रेसिव स्ट्रेस, इसका मतलब है कंप्रेशन को मैं क्या ले रहा हूँ? पॉजिटिव। ऐसे ही है ना, हमने जब पीछे अच्छा साइन कन्वेंशन में नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो इसका ज़्यादा चांस हो कि ये मोस्ट ऑफ टाइम, ये कॉलम में क्या होता है, कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं ना मोस्टली ये, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो जो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। कोई नेगेटिव नंबर आते हैं, इसका मतलब इट इज समथिंग वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, ओके। तो नेगेटिव नंबर्स आर यूजुअली रिजर्व्ड फॉर समथिंग दैट यू डोंट एक्सपेक्ट, ओके। सो हम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को कॉलम में पॉजिटिव लेंगे, और अगर कहीं पे आंसर नेगेटिव आ रहा है तो आप उसका मतलब लेंगे ये तो टेंसाइल आ गया, कॉलम है और उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ गया, करेंगे। सो अब हमने सुपर इम्पोज करना है एक्सियल स्ट्रेसेस की वजह से, एक्सियल स्ट्रेस व्हिच इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द क्रॉस सेक्शन, और बेंडिंग स्ट्रेस व्हिच वेरीज, ठीक है। अब जरा देखिए, इसकी वजह से अगर मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करूं यहाँ पे आपको, अगर मैं इस लाइन के ऊपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करूं कि यहाँ पे कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, तो इट इज यूनिफॉर्म है ना, ऐसे ये 0 लाइन है, और ये जो स्ट्रेस है ये P/A के बराबर है, ऐसे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है और P/A के बराबर है। अगर इसकी वजह से प्लॉट करूंगा तो मुझे पता है कि इस तरह से बेंड हो रहा है, इस साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, इसकी वजह से प्योर, एक साइड बेंडिंग स्ट्रेस है ना, एक साइड पे कंप्रेसिव, दूसरी साइड पे टेंसाइल। तो इसकी वजह से स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस तरह से होगी, इस तरफ कंप्रेसिव, मैंने कंप्रेसिव वहां उस तरफ प्लॉट किया ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लॉट किया, तो इसको मैं पॉजिटिव प्लॉट। अब ये मैग्नीट्यूड वाइज इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे छोटी भी हो सकती है, और इक्वल भी किसी केस में हो सकती है। मैं अज्यूम कर रहा हूं इस वक्त कि ये मैग्नीट्यूड वाइज ये वाली जो स्ट्रेस है, जो डिपेंडिंग, ये इससे थोड़ा छोटा है, अभी जिसमें असम्पशन है मेरे मुताबिक डिफरेंट केस भी हो सकता है, ठीक। और इस तरफ क्या होगी? टेंसाइल, और सेंटर में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर बेंडिंग स्ट्रेस है ना। सो अब नेट स्ट्रेसेस कितनी होंगी? यहाँ पे एक कंप्रेस, इससे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ नहीं आते, ठीक है। इस साइड पे ये कंप्रेसिव, इस साइड पे ये एक्सियल फोर्स की वजह से कंप्रेसिव, ये बेंडिंग की वजह से कंप्रेसिव, एक कंप्रेसिव दूसरा कंप्रेसिव मिलके बिगर कंप्रेसिव स्ट्रेस बनाएंगे सुपर इंपोज होके। तो इस साइड पे ये प्रोड्यूस करेंगे लार्जर सम ऑफ दिस प्लस दिस। दूसरी साइड पे क्या होगा? ये कंप्रेसिव है, और अगर ये मैग्नीट्यूड में टेंसाइल से छोटा है तो फाइनल आंसर क्या बनेगा? कंप्रेसिव। पॉजिटिव। कंप्रेसिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, टेंसाइल का कम है, हमने ऐसा कंज्यूम किया होगा। तो यहाँ पे कंप्रेसिव ही होगी, बट क्या होगा? मैग्नीट्यूड कम होगा, एग्री? तो ये फाइनल स्ट्रेस बन जाएगी, लार्जर कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑन वन साइड और दूसरी
दूसरी साइड पे है कंप्रेसिव बट अ स्मॉलर नंबर। टेंसाइल रहा होगी सॉरी, दूसरी साइड पे टेंसाइल नहीं रहा होगी। हाँ फॉर एग्जांपल ये थी 20 KSI कंप्रेसिव और ये था 5 KSI, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 15 KSI। लेट्स से मैं नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये 15 KSI है और ये कंप्रेसिव में, और ये टेंसाइल में चलिए लेट्स से 8 PSI हो गया। 15 KSI कंप्रेसिव सुपरइम्पोज विद 8 KSI टेंसाइल, क्या आंसर करना चाहिए 7 KSI कंप्रेसिव। ये टेंसाइल था बेंडिंग की वजह से, लेकिन इसी जगह पर, इसी कोने, इसी एज के ऊपर जो कंसेंट्रिक लोड था एक्सियल, जिसको मैंने इस स्टेप में किया पहले भी, उसकी वजह से यहाँ पे 15 KSI का कंप्रेसिव था, तो उस वजह से ये क्या बन गया 7 KSI। ओह आई एम सॉरी, यस आप सही कह रहे हैं, यस यस मैंने गलत ड्रॉ कर ऊपर रहेगा। आप सही कह रहे हैं, मैंने ड्रॉ गलत किया, इसमें कैसे ही लेकिन ड्रॉ गलत कर रहा हूं। सो इफ दिस इज 8 KSI कंप्रेसिव, 15 KSI कंप्रेसिव, ये हो जाएगा 23 KSI कंप्रेसिव, और यहाँ पर 7 KSI कंप्रेसिव। ओके थैंक यू। ये एक बंदा है जिसने मुझे चैलेंज किया कि आप गलत ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी कह रहे हैं हाँ बस सही है। ओके थैंक यू। ओके अब एज्यूम करते हैं कि लेट्स से किसी और सिचुएशन में ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस थी 20 KSI और यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गई वो लेट्स से हमने एक्सेंट्रिसिटी बढ़ा दी है, वही पी लोड हायर एक्सेंट्रिसिटी पे, तो ये केस उतना ही रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ 15 की 20 की बजाय मैं कहता हूँ 15 ही है, चलेगा, मैं एक्सेंट्रिसिटी सिर्फ बढ़ा देता हूँ, तो उससे क्या बढ़ेगा बेंडिंग मोमेंट बढ़ जाएगा ना, तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ने की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस भी बढ़ेगी। तो लेट्स से इस केस में ये हो जाती है 20 और ये 20 KSI कंप्रेसिव, 20 KSI टेंसाइल, सॉरी आइडिया कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, ठीक है। तो अब क्या बनेगा फाइनल 15 कंप्रेसिव, 20 कंप्रेसिव, 35 कंप्रेसिव, और दूसरी तरफ पे 5 KSI टेंसाइल। So of course there will be a point, there will be a certain value of eccentricity at which this compressive stress and this tensile will be exactly equal in magnitude. In that case, special एक case इस तरह का बन सकता है, इस तरफ 0 और इस तरफ compressive आगे। ये कॉन्सेप्ट हम प्री स्ट्रेसिंग में भी यूज करते हैं, ठीक है, वो अब आगे पढ़ेंगे, but this what I'm telling you again how we can play with these numbers, okay? और देखिए वर्क आउट की कितनी कम वो आप ई को आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू के ऊपर ये बिल्कुल 0 हो जाएगा दूसरी साइड पे कंप्रेसिव, ओके। सो इसका मतलब ये है कि अच्छा ये इस जो नेट स्ट्रेस है सिग्मा वो इज P ओवर A, ये कंप्रेसिव है, और दूसरा जो मैं इसके साथ लिखूंगा वो अब ये तो P ओवर है, तो हर जगह P ओवर है ना, इधर भी यही स्ट्रेस है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, लेकिन फ्लेक्चर की वजह से स्ट्रेसेस ऐसे नहीं होते, फ्लेक्चर की वजह से स्ट्रेसेस एक तरफ कंप्रेसिव दूसरी तरफ टेंसाइल, इसका मतलब यहाँ डिफरेंट स्ट्रेस है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। अब अगर मैं नेट स्ट्रेस की बात करूं कि नेट स्ट्रेस कहां पे कितना है, वो भी सारे में डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे, ओके। इसका मतलब है अब मैं खाली सिग्मा की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा सिग्मा कहां पर, किस जगह पे ले रहा हूं सिग्मा, ठीक। लेट्स से मैं कहता हूं सिग्मा कंप्रेसिव मैक्स, ये कंप्रेशन वाली साइड में मैक्सिमम स्ट्रेस, समझ रहे हो बात, ये यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जहाँ कंप्रेशन और कंप्रेशन ऐड अप होके एक बिगर कंप्रेशन बना रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, तो वो ये वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये भी कंप्रेसिव एक्सिट की वजह से अगला भी कंप्रेसिव, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस अगर आपको क्रॉस सेक्शन गिवन हो, उसका m लग रहा हो,
एम वाई ओवर आई। कोई और फार्मूला तो नहीं निकाल सकेंगे ना अपनी तरफ से? ओके, एम वाई ओवर आई। वाई क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। आप यहाँ पे फाइंड जैसे अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है ये गाड़ी, ठीक, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये आपका y, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं ये y, यहाँ पे कर रहे हैं तो ये y। तो यहाँ पे अगर एंड पे कर रहे हो, आपको पता है मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम एक टर्म यूज करेंगे यहाँ पर c। आप पहले यूज कर चुके हैं। c इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द एक्सट्रीम फाइबर, और ये c हम कह रहे हैं कंप्रेसिव वाली साइड का। ठीक, अब इसमें दो तरीके हैं, एक को हम C1 एक को C2 कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ C के नीचे कंप्रेसिव देख रहा हूँ। ये नीचे साइड पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही है, उस साइड पे न्यूट्रल एक्सिस से उस एज तक का डिस्टेंस जिस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो C के अंदर ही कंप्रेसिव लिखिए। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें तो दोनों C इक्वल होंगे ना, हाफ हाफ, तो वो C टेंसाइल और C कंप्रेसिव सेम होंगे। लेकिन मैं सब C के साथ छोटा ये कि C लिख लो ताकि आप बहुत ज़्यादा लंबी एक्सप्रेशन ना बने। ओके, सो दिस हाउ यू गोना कैलकुलेट इट। इसमें जो m है इसकी जगह पे आप इस m की जगह पे आप p टाइम्स e लिख सकते हैं। ठीक है, एग्री? और सिग्मा, अच्छा बस इसी पे मैं फिलहाल करता हूँ। अगर हम सिग्मा, एक तो कंप्रेसिव मैक्स वाला साइड है ना, वाली साइड ये वाली, इस एज पे स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया ये एक वन कंप्रेशन एंड विद अनदर कंप्रेशन। दूसरी साइड पे देयर इज कंप्रेशन ड्यू टू एक्सियल लोड एंड टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग लोड। नेट आंसर क्या बनेगा? जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा, तो उसमें यहाँ पे साइन आपका नेगेटिव आएगा दूसरी एज के लिए। ठीक, लेकिन इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेसिव वाली साइड। ठीक, ये है किसी भी p वैल्यू पे आपका कोई भी p वैल्यू आपकी जो भी p वैल्यू उससे स्ट्रेस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई भी p वैल्यू यहाँ से स्ट्रेस निकाल सकते हैं किस लोड पे। ओके, दैट्स इट। ये इसी को यूज यहाँ से इस ये है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी डेरिवेशन। फाइनल वाली मुराद हमारी कंप्रेसिव वाले सिग्मा मैक्स है। ठीक है, सिग्मा मैक्स लिख दिया, लेकिन हम बात क्योंकि अगर स्टील होगा ना, स्टील का बना होगा ये कॉलम, तो जाहिर सी बात है कि ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर ये तो पॉसिबल है कि एक लार्जर कंप्रेशन और स्मॉलर कंप्रेशन बन जाए। ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस मैग्नीट्यूड में कंप्रेसिव से क्रॉस सेक्शन के ऊपर कहीं बढ़ जाए, कंप्रेसिव भी बढ़ा रहेगा। एग्री? ये नहीं हो सकता कि ये वाली साइड बड़ी हो जाए जहाँ पे कंप्रेसिव और टेंसाइल ऐड अप हो रहा है। जहाँ कंप्रेसिव और कंप्रेसिव ऐड अप होके बिगर कंप्रेशन बना रहे, दैट साइड हैज टू बी अ बिगर कंप्रेशन। सो स्टील में हम नॉर्मली कंप्रेशन की कैपेसिटी नॉर्मली कम होती है, लेकिन थ्योरेटिकली स्पीकिंग टेंसाइल उसकी कैपेसिटी कंप्रेशन और यील्ड स्ट्रेंथ उसकी टेंशन और कंप्रेशन में सेम है बाय असम्पशन बाय द वे। इसका मतलब है हम जो बड़ी वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेस उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉट अ गड़बड़। ठीक है, यानी कंप्रेसिव वाली साइड पे ही ये अगर स्ट्रेस आप लोड बढ़ाते जाएंगे तो ये दोनों ग्रो करते जाएंगे, 23 और 7 ग्रो करते जाएंगे सारे। तो फाइनली इसी ने पहले पहुंचना है यील्डिंग पे, तो हम इसी को बस सिग्मा मैक्स बोल दिए इसी को ही। ओके, अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं, P आपको पता है जो लोड लग रहा है, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉलम, E इज द एक्सेंट्रिसिटी, C मैंने आपको बता दिया,
R is the radius of gyration. R क्या है? Radius of gyration. इस तरह का कैलकुलेशन ना R. ठीक है, ये इक्वेशन आपको पता है I equal to AR square. ठीक है? So secant of, अच्छा इसमें ये भी याद रखें, कैलकुलेटर ये एंगल रेडियंस में होगा, यानी ये कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड में होना चाहिए. मैं ये लिख देता हूँ. मैथ कैलकुलेटर आप कर रहे हैं तो आपने रेडियन में एंगल रखना है. ओके, सो क्या कहेंगे इसमें? L is the effective length, R is the radius of gyration, regional marking वगैरह, P is B is the molecular velocity of the material. सीट और इस कंप्रेशन एंगल को उसने आयलर एंगल का नाम दिया हुआ है और एक्सट्रीम इसको साइड है eccentricity ratio. इस एंगल को आयलर एंगल और इस रेशियो को eccentricity ratio. एक्सेंट्रिसिटी भी तो वही होती है, वो लोड तक होती है. एक्सेंट्रिसिटी और उसमें क्या करते हैं? Now there are two ways जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अगर आपको एक क्रॉस सेक्शन गिवन है, एक क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है और इसका मतलब है उसका आपको रेडियस ऑफ gyration पता होगा, लेंथ गिवन है आपको कॉलम की, आपको इफेक्टिव लेंथ पता है, वो L भी आपको पता होगा, एक्सेंट्रिसिटी गिवन है, लोड कितना लग रहा है ये भी गिवन है और G की वैल्यू आपको गिवन है, मटेरियल को पता है. तो आपको सिंपली ये स्ट्रेस निकालना है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कंप्रेसिव का कितना प्रोड्यूस. ये सिग्मा मैक्स का आपको जब समझ रहे हैं, मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ. सिग्मा मैक्स का मतलब है कि वी हैव गॉट डिफरेंट, एक ही पी लोड लग रहा है, उससे यहाँ पे डिफरेंस स्ट्रेस है, यहाँ डिफरेंट है, उन सब में जो मैक्सिमम है उसको हम सिग्मा मैक्स कहते हैं. आप बात समझ रहे हैं इसको? ये मतलब नहीं है कि ये कॉलम की कैपेसिटी है, कॉलम की कैपेसिटी नहीं है, बस कोई भी लोड लगेगा तो उससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ना. कोई भी लोड लगे, वो कैपेसिटी से अभी बहुत दूर है, अभी हम जस्ट लोडिंग स्टार्ट की है, वो थोड़ा सा भी लोड लग रहा है, कैपेसिटी तक अभी नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी भी पी लोड की वजह से कोई ना कोई स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होगा ना. हम उस इंस्टेंटेनियस स्ट्रेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी पी लोड से ये स्ट्रेस मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा. मैक्सिमम का मतलब है क्रॉस सेक्शन में कहीं पर जो मैक्सिमम होगा उस मैक्सिमम की बात हो रही है. यानी कि ये मतलब नहीं कि ये इस स्ट्रेस पे कॉलम में फेल होना है, ये मतलब कॉलम में तो कब फेल होना है जब ये सिग्मा मैक्स सिग्मा यील्ड पे पहुंच जाएगा तो कॉलम में फेल, assuming that it is controlled by the yielding. Okay? So ये प्रॉब्लम तो सिंपल है कि ये पी लोड है, ये सारा डेटा गिवन है और आप कैलकुलेट करें कितना सिग्मा मैक्स प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज सिंपल. अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक मटेरियल है जिसका सिग्मा मैक्स है, सिग्मा यील्डिंग जहां तक वो मैक्सिमम स्ट्रेस ले सकता है, वो आपको मैं दे दूं, ये आपको गिवन है, ये यहां पे रखें और मुझे बताएं कि किस पी लोड पे इसका सिग्मा मैक्स इस पे पहुंच जाएगा, किस पी लोड पे ये फेल हो जाएगा कॉलम. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको सिग्मा मैक्स को ये साइड अब मुझे नोन हो गई, ठीक है, और मुझे कैलकुलेट कर रहे हैं कि पी कौन सा होगा जिसमें स्ट्रेस सिग्मा मैक्स सिग्मा वाई पी के बराबर हो जाएगा. गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग इट? तो उस केस में कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है. क्यों बोला? मुश्किल क्या होगी? कहीं लोग प्रॉब्लम क्या होगी आपको? आपके ख्याल में क्या आएगा? ये पी को इधर करते सिग्मा मैक्स को इधर लेते हैं, बस खत्म. There is another p. Can you find that? And unfortunately it's a angle. Angle के अंदर p है, so you cannot simply
I mean, pull this out. ठीक है? So what does it mean? How are you going to solve it? You better try. You better do it in trials. कैसे? P की वैल्यू रखें और उस P की वैल्यू से मैथ कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो आपको 3 करने के कितना टाइम लगेगा? P की वैल्यू रखी और सिग्मा मैक्स कैलकुलेट कर दिया. फाइन. अगर वो सिग्मा मैक्स इसके बराबर है, you got your P जो आपको चाहिए. If not, let's say अभी स्ट्रेस कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी सिग्मा वाई पी ज़्यादा है, तो what do you do? P की अगली वैल्यू अगली दफा बढ़ा देंगे. बढ़ा दें. P की वैल्यू बढ़ा दी, सिग्मा मैक्स आंसर चेक किया. जिस P वैल्यू पे सिग्मा मैक्स इसके बराबर हो गया, that is your P. जिस पे आप यही तो चाहिए था ना. कैलकुलेटर पे करते हुए it takes a long time, क्योंकि बार-बार आप जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेंगे, वहाँ पे वैल्यू चेंज. कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा. कैलकुलेटर में सॉल्व हो जाएगा ये वैसे ही. सॉल्वर वाले से सॉल्वर इतना आप चेक करके देखिए, वो 5 मिनट बाद कहेगा सॉल्यूशन नॉट फाउंड. 5 मिनट भी लगाएगा, एंड में कहेगा सॉल्यूशन नॉट फाउंड. इस तरह कोई मैसेज दे देगा और आप फिर कहेंगे अच्छा इससे तो अच्छा मैंने ट्रायल में अभी तक पहुंच नहीं गया होगा. कैलकुलेटर you gotta use math. What do you worry about that? Whether calculator can do it or not, it's not a problem for you. Okay? वो पुराने दौर में होते थे कैलकुलेटर पेपर लेते थे ना. You don't have a problem with this. Okay? All right. So that's one way of asking the question. So, but in fact, they cover 2 ways. One is simple. The P value is given. Just put the value, get the answer for sigma max. The other is you have specified the value of sigma max, and you want to calculate the value of P, which will give that sigma max equal to sigma yt. Okay. The other way, which is not going to be like we're not going to cover that. I mean, we don't want to discuss that because there's a design type problem in which you're given the load to be carried, you're given the material to be used, which is said in yield strength, which means you're given a situation. This is the load to be carried. This is the material to be used. This is the length which we need to span, and there's, let's say, eccentricity is, let's say, known, and you're asked to come up with a cross section which can be used over there to carry that load. Which means you'll have to find out the R value, A and R value, in which case it is better to write this expression down in another way. Sigma max equal to P over A plus, same expression can be written in a different way, over S secant of L E by 2. Notice it is not R anymore. हमने basically क्या किया? ये R square की जगह हमने यूज कर लिया I और A को. R को basically eliminate कर रहे हैं और इसी तरह यहाँ पे R की जगह पे उसको निकाल दिया और फिर वो जो स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा ना, इस R की जगह I over A जब बनेगा तो उसको फर्दर हम इसके साथ कंबाइन कर देते हैं. You can, without going into the details, I'm just telling you the final expression. यानी R को रेडियस ऑफ gyration सेक्शन उठाना हो ना तो हमें क्या चाहिए होता है? तो हमें आपसे को मुझे ऐसा सेक्शन चाहिए जिसका रेडियस ऑफ gyration इतना हो. It becomes difficult to figure out कि वो कौन सा सेक्शन होगा. It is easier बल्कि R भी होगा तो इसमें 2 क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज है ना, एक R है और एक A है, बाय द वे एक C भी है. ठीक है. So हम इनके फॉर्म में वर्क करने के बजाय we come up with something that is easier to, which can be easily used search in a table of cross section. Okay. So हम फिर LU over 2 times P over EI under root. So this can be used to come up with a section. Okay. Even another form that can be, well, that's fine, I think. Yeah, factor of safety concept is the same. Let's not do that. Oh, another concept that you need to understand over here. One factor of safety is always, by definition, you gotta apply that factor of safety to the loads. Load. ये concept मैं आपको भी समझाता हूँ. यानी हम कहते हैं कि एक कॉलम की कैपेसिटी मिसाल के तौर पे 15 किप है. 15 किप में वो कॉलम फेल हो जाता है. ठीक. फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब मैं लोड पे अप्लाई करूँगा. मैं कहूँगा अगर मैं
मुझे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर मुझे लेट्स से मैं कहूँ इस कॉलम की फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर मैं कहूँ 7.5 किप पे इस कॉलम की कैपेसिटी, इस कॉलम की फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है, ये यही हमने लास्ट टाइम भी किया ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने बाय डेफिनेशन लोड पर अप्लाई करना होता है। कॉलम का लोड कैरी कर सकते हैं, इसके हाफ लोड पे इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 होगी, ऐसे ही है, एग्री? या मैं आपसे कहूं मुझे कैरी करना है 20 किप लोड, एक जगह कॉलम लगाना है जिसको 20 किप लोड लेना होगा, तो वहां मैं ऐसा कॉलम अगर लगा दूं जिसकी कैपेसिटी हो 40 किप, जो P जिसका P मैक्स जिसको जिस P को उससे फेल होना है वो 40 किप हो, तो मैं कहूंगा मेरा ये जो कॉलम है इट इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 2। यानी सो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लोड पे अप्लाई करते हैं। पिछले जो हमने कंसेंट्रिकली लोडेड कॉलम्स पढ़े ना, उसमें हर एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप स्ट्रेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप कहेंगे ये इससे यील्ड स्ट्रेंथ है लेट्स से 250 मेगापास्कल और ये सॉरी 250 मेगापास्कल और ये 125 मेगापास्कल, जब इसमें स्ट्रेस होगा तो उस वक्त फैक्टर सेफ्टी 2 होगी। उस केस में हम क्या सकते थे क्योंकि लोड और स्ट्रेस लीनियरली रिलेटेड थे, डू यू रिमेंबर? वहां पे सिग्मा वाज इक्वल टू P ओवर A, बस ये था। फैक्टर सेफ्टी यहाँ भी लगाई जा सकती थी, यहाँ पर भी अप्लाई की जा सकती है। या तो आपने मेरा सिग्मा अगर 50 के एसआई को यील्डिंग होने का 25 के एसआई आप पुट कर दें और P कैलकुलेट कर दें, क्या P वैल्यू जिसको फैक्टर सेफ्टी 2 होगा, इस तरह भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें लोड पे ही फैक्टर सेफ्टी लगाना पड़ता है, जो कि बेसिक उसका प्रिंसिपल है, क्योंकि लोड और स्ट्रेस यहाँ पर आर दे लीनियरली रिलेटेड? नो, यहाँ से तो लग रहा है कि लीनियरली रिलेटेड, लेकिन ये तो सीक्वेंस के अंदर जाके P है ना, तो इसका मतलब है लीनियरली रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक, सो हमेशा लोड भी हम अप्लाई करेंगे। All right, let's look at this problem. So let's look at this problem. A W14/61 section is used as a simply supported column, 25 feet long. When the 150 kipp load is applied with the 4-inch eccentricity form, determine the maximum compressive stress in the column, which means straightforward classes. Just put the values, you get the same max. Okay. Next, the factor of safety against yielding. Number 3, the maximum label deflection. Assume that the column does not buckle about the y-axis. Okay. Use E equal to 29 into 6 psi and sigma y E equal to 36 into 10 raised to power 3 psi. The yielding strength, okay? Sigma y E. Now look at the column, it has got 2 axes, y and z. Which one of them is the stronger axis? Which means if it is concentrically loaded, then which axis is going to be the weaker and which one axis is going to be the stronger? Why is strong? Why strong? The answer lies in calculation of I, which means अगर जिसका I जिस axis का about I कम है, उस axis का about बकल होगा, वो weak axis होगा। किसके about I कम है? वाई के अगर ये कंसेंट्रिकली लोडेड होता तो हम वो जो आइडियल फार्मूले में I पुट करते हैं, जो पिछले टॉपिक पढ़ लिया, वो कौन सा I Z पुट करते हैं, I Y पुट करते हैं? आई जी। देखो ये कॉलम है, ऊपर जाएगा यहाँ से अच्छा मैं अभी आपसे I और Z या Y की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह का जो शेप होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ज़्यादा होगा 1 या इसके अबाउट 2? हॉरिजॉन्टली वर्टिकल एक्सिस इसके अबाउट ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। अच्छा मैं
उल्टी जैसे है ना इसमें वर्टिकल एक्सिस का अबाउट ज्यादा होगा या हॉरिजॉन्टल के अबाउट? वर्टिकल का क्या अबाउट ज्यादा होगा मोटर टेंशन? अच्छा हम लिखते हैं ना, चलो इसको ये है लेट्स से 10 और ये है 30, ठीक हो गया? सो अब मैं अगर लेट्स नाम देता हूँ ये x है और ये y है, x कैसे कैलकुलेट होगा? 10 BH की बोला सो B है वो डायमेंशन जो पैरेलल टू x है जिसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं, दिस इज योर B h 30 क्यूब ओवर 12 और I क्या होगा? ये रेफरेंस एक्सिस है, इसका B को कौन सा होगा जो इसके पैरेलल है, रेफरेंस एक्सिस के पैरेलल 30 टाइम्स 10 क्यूब ओवर 12, कौन सा आंसर बड़ा होगा? x वाला बड़ा होगा ना? यस सर बड़े क्यूब है ना, अबाउट सो दिस इज बिगर, ये बिगर है, ठीक है? और इसमें भी ये बिगर होगा ना, ठीक है? सो इससे ये स्ट्रॉन्गर एक्सिस है, दिस इज स्ट्रॉन्गर एक्सिस, ये आपने स्टील स्ट्रक्चर में भी पढ़ा हुआ है, दिस इज इट्स वीकर एक्सिस। अब नाम जो भी वहां पे प्रॉब्लम में गिवन है, इसको आपने क्या नाम दिया है? Z, और इसका नाम क्या दिया है? Y, ठीक है? ये दिया हुआ है। अगर ये कंसेंट्रिकली लोडेड होता, लोड इसके ऊपर या सेंटर में आके लग रहा होता, तो फिर इसमें बकल किसके अबाउट वाला था? y एक्सिस के अबाउट, अगर सेम इफेक्टिव लेंथ होती दोनों डायरेक्शन में, ठीक है, कोई ब्रेसिंग ना लगी होती किसी साइड से, तो फिर इसने y के अबाउट बकल जाना था। तो हम इस फार्मूले में ये I वैल्यू कौन से पुट करते? स्मॉलर I वैल्यू I ऐसे ही। तो कंसेंट्रिकली लोडेड के केस में तो सिर्फ एक चीज में डिसाइड कर लेना है, किस चीज में I है, बिकॉज किस एक्सिस के अबाउट बकल हो रहा है। अब जरा देखिएगा, अभी तक आपका आंसर क्या है कि इसमें y के अबाउट बकल हो जाना है, दैट इज द वीकर एक्सिस। यहाँ पर आप I पुट कर दें, आपके पास आंसर आएगा, यही आंसर है ना, z के अबाउट नहीं बकल होगा। अगर मैं लोड को एक्सेंट्रिसिटी दूं और इस z के लिहाज से एक्सेंट्रिसिटी दूं, यानी z पे ये इधर लगने के बजाय इधर लगना शुरू हो जाए, तो अब ये z के लिहाज से एक्सेंट्रिकली लोडेड हो गया, y के लिहाज से अभी भी सेंटर में ही है, z के लिहाज से एक्सेंट्रिसिटी आ गई है इसमें। अब इस केस में अगर लोड लेट से यहाँ पे लग रहा है, लोड को मैं यहाँ स्टैटिक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोड की एप्लीकेशन है, क्योंकि वो ये मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ इसलिए इस तरह कर रहा हूँ। तो ये आपको एक्सेंट्रिसिटी मिल गई जब आप इसको विद रिस्पेक्ट अब z के अबाउट जो बेंडिंग होगी, अगर आप इमेजिन करेंगे यहाँ से जब ये लोड होगा तो आप ये जो z के अबाउट बेंडिंग होगी, उस बेंडिंग वो एक्सेंट्रिक बेंडिंग होगी, एक्सेंट्रिकली लोडेड होगा। अब एक्सेंट्रिकली लोडेड के लिए दिस फार्मूला डज नॉट अप्लाई। सर ये जो लोडिंग हमने लगाई है, ये इसकी एक्सेंट्रिकली लोडिंग ये y के अलोंग नहीं होगा, क्योंकि ये बकल तो इस तरह करेगा, तो y के अलोंग करेगा लेकिन इस तरह करेगा, z के ऊपर है। इस केस में या यू आर राइट, इस केस में यस, इस केस में ऐसे होगा। अब आपने फर्दर y के अगेंस्ट उसको वीक कर दिया, यस यू आर राइट, ठीक है, फर्दर आपने y के अबाउट वीक कर दिया। अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी इसके बजाय पहले भी y वीक था, अब तो फर्दर आपने y के अबाउट वीक कर दिया कि आपको y के अबाउट डेफिनेटली अब तो उधर ही पकड़ करेगा, y के अबाउट पकड़ करेगा। अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी इस तरफ डाल दूं, इसमें यहाँ पे लोड लगे और ये एक्सेंट्रिसिटी लगा दूं, अब ये z के अबाउट बेंडिंग कंसेंट्रिकली नहीं हो रहा, अब ये z के अबाउट जो बेंडिंग होगी वो एक्सेंट्रिकली लोडेड है, ये z के अबाउट बेंडिंग के लिए। तो अब इस केस में दो पॉसिबिलिटीज हैं, z के अबाउट जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक्सियल लोड के साथ साथ बेंडिंग लोड भी आ रहा है z के अबाउट कैलकुलेशन करने के लिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये कि z के अबाउट जो उसका स्ट्रेस बन रहा है वो पहले से ही यील्डिंग के अबाउट
के ऊपर पहुंच जाए, जो आप एक्सेंट्रिकल लोडेड फार्मूला यूज कर लें उससे। चाहे अब ये जी के अबाउट जो बकलिंग हो रही है, इसकी बेंडिंग हो रही है, वो एक्सेंट्रिकली लोडेड है, लेकिन वाई के लिहाज से स्टिल इट इज कंसेंट्रिकली लोडेड। सो उस केस में फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। तो उसने हमें एक प्रॉब्लम पहले से बता दिया कि assume that the column does not buckle about the y-axis, which means कि अब y-axis से उसने कह दिया आप बेफिक्र हो जाए, y-axis के about नहीं बकल होने लगा, and let's assume that buckling about z is governing the failure, ठीक है। ये उसने इस बात की पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करके आपको दे दिया ताकि आप y के बारे में कंसर्न ना हो, आप सिर्फ z के लिए z को गवर्निंग कंट्रोलिंग समझ लेंगे, जी के बहुत जो बेंडिंग है उसने कंट्रोल करना है फेलियर को। सर अगर गिवन ना हो तो ये करा चेक है, यहाँ पे आई वाई यूज करते हैं। आपने देखे कि वाई के अबाउट इसका पी क्रिटिकल कितना बन रहा है, पी क्रिटिकल आ जाए तो आप पी क्रिटिकल को ए से डिवाइड करते हैं तो आपको सिग्मा क्रिटिकल मिल सकता है। यहाँ से आप सिग्मा क्रिटिकल जब से मैक्स में पहुंचेंगे ये फेल होगा ना। लेट मी टेल यू एंड में दोबारा इसके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको आप कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट come to the problem, first part, maximum compressive, determine the maximum compressive stress in the column. Okay, so अच्छा अभी बहुत सिंपल है, let's see from, अब आपको क्रॉस सेक्शन गिवन है। अब इस केस में इन्होंने टेबल B-6 में जाके टेबल B-6 इन अपेंडिक्स B, ठीक है, आपको बुक आपके पास होगी ना एग्जाम में, आपको मैं अपेंडिक्स पे ले जाता हूँ, वैसे तो आपने देखा हुआ है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम सर्च कर दें W14 बाय, सर W14 को ही सर्च कर लेते हैं। ये कहीं ना 14 लिखा है। पूरा लिख दें सर जी, जल्दी हो जाएगा। W14 अब आगे क्या था 61, so इसमें आपको देख लेंगे कि W14 बाय 61 सर रोटेट कर ये W14 आ गया आपके पास। अब इसमें W14 बाय 61 आपको देखना है, ये आ गया। ठीक है, नजर आ रहा है। अब आपको टेबल में देखना होगा कि ऊपर हेडिंग्स ऐसे ही आ गई है। तो ये ऊपर जितनी क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज गिवन है इन सबको आप कॉपी कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। तो आप लैपटॉप के अलाउट होने का ये फायदा है कि आपको कुछ ये नहीं बताना कि मैं कुछ आप खुद से प्रॉपर्टीज दूंगा या आपको टेबल लेकर आना है या मैनुअल लेकर आना है, जो कुछ है इसके अंदर है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। So we are going back to the problem. Okay, so ये जो प्रॉपर्टीज गिवन है ये हमने अपने देख लिए कहाँ से हम उठाएंगे। ओके, since the column is simply supported, effective length is same as the given length, k is 1, okay, 25 feet. Now just use the expression sigma max equal to p over a plus pe over s. S के साथ नीचे क्या लिखा हुआ है? Subscript z, because we are considering it is bending about z, so you have to use s z. वो टेबल में दोनों given होंगे, you need to know कि मैंने कौन सा यूज करना है, ठीक है, clear? Secant of le over 2 square root of p over e, I के साथ भी क्या लिखा हुआ है? z. So you got the sigma max 15.535, that's it. ठीक है?
वाई के अबाउट स्ट्रेस होगा ना वो सिंपली पी ओवर ए होगा, दूसरी उसमें टर्म नहीं होगी वाई के अबाउट, क्योंकि वाई के अबाउट जब आप कैलकुलेशन करिए कि वाई के लिहाज से देखना था वैसे है ये स्ट्रेस है दैट्स ऑल क्लियर, और वाई के लिहाज से देखना तो हाई पी ओवर है, ज़ाहिर आंसर कम आना था ना, उससे गलत तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 में उसने कहा है डिटरमिन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट यील्डिंग। जब आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करने का कहा जाए ना, आप फैक्टर सेफ्टी बाद में करें, पहले आप ये देखें कि किस पी लोड पे मेरा स्ट्रेस यील्डिंग पे पहुंचेगा। इसका मतलब क्या है, आप वो फार्मूला लिख दें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है सिग्मा मैक्स, ये फार्मूला ये सिग्मा मैक्स, ये काम आपने एक दफा करके जाने ताकि आपको पता हो कि हमने कैसे इसको यूज करते हैं। पी ई ओवर एस सी सीकेंस ऑफ एल ई बाय 2 पी ओवर ई आई सी सिग्मा मैक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ sigma yt which is 36 3 psi चलो psi में कर देते हैं 36,000 psi equal to p हमें नहीं पता ना, p को ऐसे नहीं लिख देंगे, a की वैल्यू कितनी है, how do we solve it, इस तरह सॉल्व करने के बजाय हम ऐसे सॉल्व करेंगे, sigma max equal to p over a की वैल्यू कितनी है 17.9 इंच स्क्वायर, ओके, प्लस p टाइम्स e की वैल्यू कितनी है 4 इंच, ये e की वैल्यू टेबल से आई है ना, अपेंडिक्स में जाके ऐसे ही है ना, e की वैल्यू हाँ e की वैल्यू कहाँ से आई है, हाँ फिगर पे गिवन है 4 इंच, ठीक है। और एस डी की वैल्यू वो टेबल से 92.1 और सीकेंड ऑफ एल ई कितना है 25 फीट, इसको इंचेस में ले लेंगे 1/2 p ओवर ई की वैल्यू कितनी है 29 into 10⁻⁶ psi और IC की वैल्यू 648, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ करना और स्क्वायर ये आ गया ऐसे। अब क्या करते जाएंगे, p की डिफरेंट वैल्यूज लेके आंसर देखते जाएंगे, करें जरा इसको, कैलकुलेटर से करें रेडी, तो फॉर p इक्वल टू 3 कितना था 328 okay, we get sigma max equal to approximately equal to 36 psi, which means that at this p the column will get to the yielding, okay, इस p पे वो yielding पे चल जाएगा, हमने खाली इसको ये नहीं बताना था कि कितना भी yield होगा, उसका क्वेश्चन ये था पार्ट 2 को अगर आप देखें, डिटरमिन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट यील्डिंग, ऐसा प्लीज पे अटेंशन, लोड उसमें दिखाया हुआ है 150 किप, हमने लोड नजर आ रहे हैं ना आपको फिगर में 150 किप, 150 किप लोड लगने की वजह से कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था 15.5, ये पार्ट 1 में हमने ही किया ना, जो गिवन लोड था उससे स्ट्रेस कितना आ रहा था 15.5, उसने कहा यही अगर लोड लगा हो 150 की एट 4 इंच एक्सेंट्रिसिटी तो
यील्डिंग के केस इस वक्त कितनी फैक्टर सेफ्टी से क्या तरीका क्या होगा? इस वक्त लोड लग रहा है 150 के, इसलिए जब लोड पहुंचेगा 328 के पे तो इसमें फेल होना है, तो आप डिवाइड करके देख लेंगे 328 डिवाइडेड बाय 150। इस वक्त हम कितना दूर है, कितना मार्जिन में है फेलियर से? 150 लग रहा है और 328 पे उससे फेल होना है। हाउ फार आर वी? कितना मार्जिन है? व्हाट्स फैक्टर सेफ्टी? 2.18। अच्छा, उसमें 2.19 का था, ये भी फॉर कंट्रोल करेंगे तो आईडिया हो जाएगा। उसने डायरेक्टली मैंने फैक्टर सेफ्टी को अंदर लाके किया, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया। वो उसने P के साथ ही जो है NP लिख दिया, where N was the factor of safety, उससे थोड़ा सा आप कंफ्यूज जाते हैं कि ये N से आ गया सारा। आप सिंपली उसकी कैपेसिटी निकाल दें कि किस P पे वो सिग्मा मैक्स यील्डिंग तक पहुंचेगा। अब आपको ये पता चल गया इस फेस में फेल हो जाए, इस वक्त 150 लग रहा है, फेलियर से कितना मार्जिन है? 2.18। ऐसे सिंपल। एक गलत तरीका भी उसने बताया कैलकुलेट करने का फैक्टर सेफ्टी। गलत क्या है? 150 की लोड लग रहा तो सिग्मा में कितना प्रोड्यूस हो रहा था? 15 गलत तरीका बता रहा था कि आपको पता हो कि भाई इस तरह नहीं करना। गलत फैक्टर सेफ्टी कैलकुलेट याद ही रह जाना। 150 की जब लोड लग रहा था उसी पहला पार्ट 1 में किया तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था? 15 point something, 15.5 KSI, और इसने यील्ड कब होना है? 36 KSI पे। तो गलत तरीका ये कि आपने अच्छा 36 KSI पे यील्ड होना है, इस वक्त स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं 15, तो 36 by 15.5। इस तरह से जो फैक्टर सेफ्टी आप निकाल रहे हैं, ये आप किस बेस में निकाल रहे हैं? ये स्ट्रेस इस वक्त कितना कम है यील्डिंग स्ट्रेस से। इससे स्ट्रेस की बेस पे फैक्टर सेफ्टी नहीं कैलकुलेट की जाती, लोड की बेस पे होती है कि इस लोड 150 लोड लग रहा है, कितने लोड में यील्डिंग में पहुंचेगा। हमें डिफरेंट फैक्टर सेफ्टी क्यों मिल रहे हैं? बेस्ड ऑन लोड्स एंड बेस्ड ऑन स्ट्रेसेस। कंसेंट्रिक लोडिंग 15.535 है, ये करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2.31 लेट्स से। अभी हमारा आंसर ये आया ना 2.18, उधर आंसर आ रहा है 2.32। बाय द वे यहाँ से आपको क्विकली एक आइडिया तो मिल जाएगा कि मैं ट्रायल्स कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ऐसे आ ही जाता है, मतलब आपको चल ही जाता है। लेकिन इसको ये इससे आपको आइडिया हो सकता है कि ये 150 के दुगना करके कहीं से मैं स्टार्ट करूँ तो मेरा ट्रायल कम हो जाएगी। ये आइडिया आप ले सकते हैं यहाँ से, बट दिस इज नॉट द राइट वे टू कैलकुलेट द फैक्टर सेफ्टी। ये बता रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रेस कितना है और इस पे यील्ड होना है, तो लिहाजा यहाँ से ये फैक्टर सेफ्टी है, बट दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द फैक्टर सेफ्टी। और पार्ट 3 में उसने एक चीज पूछी हुई है व्हिच इज इजी टू डू, मैक्सिमम लेवल डिफ्लेक्शन। ये पीछे से डिराइव किया था फार्मूला, मैंने डिस्कस नहीं किया। दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम लेवल डिफ्लेक्शन। एक्सेंट्रिक लोडिंग लगी, दिस इज वे सिंपल, बस फार्मूला ही है। Vmax के अंदर आपने ये जैसे आपने वैल्यूज पुट कर E टाइम्स सेकेंड ऑफ दिस -1, ठीक है, सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जस्ट पुट द वैल्यूज। 0.393 इंच मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डिसेंट पे प्रोड्यूस होगी। अच्छा 10.4 को देखिए, बाकी उसी तरह से मैं सिर्फ शुरू में जो आपको जहाँ पे आप फंस सकते हैं वो आपको बता रहा हूँ। वो लोअर कॉलम in figure A, which is an effective length 7 meter, is to carry the two loads with a vector safety of 2 against EMB. Okay? Due to space limitation, the depth edge of the section must be kept under 400 millimeter. Considering bending about the Z axis of the section, find the lightest suitable W shape for the lower column. We don't want to work out with the design problem, so that's not what we're going to. What should I say? That's not what we're going to solve. But I want to tell you one thing over here. What factor safety? Okay. All right. अभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इस प्रॉब्लम में जो एक चीज डिफरेंट है पिछले से वो आपको बता रहा हूँ। आपको दो लोड्स गिवन है। कितने लोड गिवन है? दो। हम इस वक्त कंसर्न लोअर कॉलम से, ऊपर वाले कॉलम को लोअर कॉलम में सपोर्ट करना है ना, तो ऊपर वाले कॉलम का लोड भी उस पे आना है और एक और लोड भी उस पे लगा है।
दो लोड्स लग रहे हैं, 400 किलो न्यूटन ऊपर वाले कॉलम से और एक एडिशनल लोड 900 किलो न्यूटन वो भी लग रहा है, नीचे वाली कॉलम की बात हो रही थी। और दोनों एक डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं, बल्कि दोनों सेंट्रॉइड की दोनों अलग अलग साइडों पे, एक लेफ्ट साइड पे 400 किलो न्यूटन और दूसरा राइट साइड पे लग रहा है 900 किलो न्यूटन। अब इससे अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि आप सिग्मा मैक्स मुझे कैलकुलेट करके दें, ये दोनों लोड्स लग रहे हैं डिफरेंट एक्सेंट्रिसिटीज, और आप मुझे सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करके दें। एक तरीका ये है कि आप सुपर इम्पोज कर रहे हैं सिग्मा मैक्स इनटू वन लोड, सिग्मा मैक्स इनटू द अदर लोड, ठीक है, एक तरीका ये। दूसरा जो ज़्यादा एफिशिएंट तरीके वो ये है कि आप इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड निकाल दें। क्या निकाल दें? इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। उसका क्या मतलब है? इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड आपने बहुत दफा यूज किया होगा इस तरह से। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड वो सारे उड़े पे हैं। सेंटर पे सेंटर ये नीचे वाला कॉलम मैंने ड्रॉ कर दिया, ये वेब सेल्स की आपको सॉरी ये फ्लैंजेस हैं और ये आपको वेब नजर आ रहा है। पॉइंट आपको पता है, ये इसका सेंट्रॉइड है, ठीक हो गया। अगर एक ही लोड होता, फॉर एग्जांपल ये 900 किलो न्यूटन होता यहाँ पे एट एक्सेंट्रिसिटी ऑफ 125 मिलीमीटर, अगर सिर्फ ये होता फिर तो आसान था ना, फिर तो आसान था, फिर तो बस ये पी और ये ही ऐसे वही आप डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर देंगे। और कंप्रेशन वाली साइड ये वाली साइड है, ठीक है, जो जो से मैक्स आप फाइंड कर रहे हैं वो इस वाली साइड है, इस साइड पे लोड की आएगी इस साइड। और ये बेंडिंग अबाउट किस वाली है, किसकी वाली, किसके अबाउट बेंडिंग वाली है? जी एक्सिस। ये इसका एक फ्लैंज है, दूसरा ये फ्लैंज है और इधर वेब है, ठीक, और वो लोड इधर लग रहा है इस फ्लैंज के इधर करीब करके लग रहा है, ठीक। तो अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शन आपको दूं, लोड जो है वो इधर तक जाएगा यहाँ पर। तो लेट्स से इस एक्सिस को मैं नाम दे देता हूँ z एक्सिस और इसको नाम दे देता हूँ y एक्सिस। और ये लोड इधर लग रहा है, अगर आप इमेजिन करें तो ये बेंडिंग कैसे प्रोड्यूस करेगा? इधर लोड लग रहा है, ये समझ लिया, ऐसे इधर लोड लग रहा है। अब ये बेंड कैसे होगा? ऐसे मतलब कि इस तरह के लगने की वजह से ये ऐसे बेंड होगा, इधर लगने की वजह से ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि तो यहाँ दबाऊंगा तो ये ऐसे करेगा, टेंडेंसी जो आपको समझ रहा है, ठीक है। दिस इज बेंडिंग अबाउट, इस तरह की जो बेंडिंग हो रही है, दिस इज अबाउट दिस एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, ठीक है, समझ आ गया आपको? अच्छा, इस क्वेश्चन को तो समझ आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ दबाऊंगा, ठीक है, जाहिर है इसमें ऐसे करके बेंड होने ना, इस तरह से, इस तरह टेंसाइल और उस तरह कंप्रेशन, ऐसे बेंडिंग होगी। और इस ये बेंडिंग हो रही है वाली इस एक्सिस तक होगी, और इस एक्सिस तक होगी। क्या आपको बहुत अगर समझने में मुश्किल होती है तो आप ये समझ लें, इधर एक्सेंट्रिसिटी जाएगी y के अलाउंग तो z के अबाउट,
बेंडिंग प्रोड्यूस कर पाओ, वो एक्सेंट्रिकली बेंड करेगा बहुत सही। और एक्सेंट्रिसिटी के साथ आप चाहें तो ई के साथ सब्सक्रिप्ट ये दिस वर्ड इज, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमारा एक लोड लग रहा है यहाँ पर, ठीक, और दूसरा एडिशनल एक लोड है 400 किलोन्यूटन यहाँ पर। और 75 मिलीमीटर। वैसे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा ज्यादा डोमिनेंट होगा? डोमिनेंस नंबर आ रही है, अगर खाली ये लग रहा हो तो ये कंप्रेशन साइड बनती है, अगर खाली ये लग रहा हो दूसरा ना लग रहा हो तो कंप्रेशन साइड ये बनती है। आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है? 900 वाला, इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, एक्सेंट्रिसिटी भी ज्यादा है। अल्टीमेटली हमें पता है दिस इज गोइंग टू द कंप्रेशन साइड, बट वी वांट टू रिप्लेस these two loads at different eccentricities by a single load which is the equivalent static load of these two loads, ठीक है। वो कैसे करेंगे? एक बात तो क्लियर है, वो जो इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड होगा वो 400 और 900 का सम होगा, एक ही लोड, दोनों को एक ही से रिप्लेस करने जा रहे हैं ना। तो ये तो हमें पता है कि हमने वो जो लोड एक ही लगाना है वो 1300 कहीं पर लगाना है, ये नहीं अभी पता है कि कहां पर लगाना है। प्रिंसिपल क्या है कि इस एक लोड की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो वो उतना ही हो जो ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलकर, ठीक है। लेट्स से हम कहते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड होगा, मैं इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड को डैश लाइन से लगा रहा हूं। हमें नहीं पता कि कितनी एक्सेंट्रिसिटी में होना चाहिए, लेकिन हमने एज्यूम किया कि वो, ये भी हमारी असम्पशन है। वैसे हमें समझ आ रही थी कि नेट जो लोड है ना वो इस तरफ ही आना चाहिए, तो हमने इधर लगा दिया, ना भी समझ आ रही थी फिर आप एज्यूम कर रहे हैं। बस मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरे जो इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड है इट हैज टू बी सम ऑफ 400 एंड 900। एज्यूम किया कि ये इससे सेंटर से राइट साइड पे इसको बनना चाहिए, ठीक। अब आपको ये से बड़ा नहीं समझ आ रही तो आपके मैंने एज्यूम किया। अब ये ई कितना होना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन। और प्रिंसिपल इसमें क्या है, 1300 टाइम्स ई। ये मोमेंट है ना उस इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड का अबाउट दिस सेंट्रोइडल एक्सिस, वो है 1300 टाइम्स ई। इसको इक्वल होना चाहिए। और इसका सेंस कितनी है? सेंस हमने हमारे जो उसमें हमने जो एक्सेंट्रिसिटी की एज्यूम किया कि राइट साइड पे होगी, उसके हिसाब से उस इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड का मोमेंट इस सेंस में होगा, तो ये मोमेंट मैं इस सेंस में ले रहा हूं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूं, मैं इसके साथ पॉजिटिव मान लिखे, ये पॉजिटिव ले, ठीक है। चलो ये अब मैं कर रहा हूं दूसरे लोड्स को, ये है मोमेंट इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड का। इंडिविजुअल लोड्स हैं उनका मोमेंट होना चाहिए इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड। इंडिविजुअल का कैसे कैलकुलेट होगा? 900 into 125, ये 900 वाले का मोमेंट है अबाउट इस ऐसे ही होगा ना। इस वाले का मोमेंट कितना होगा? और इसका सेंस भी वही वाली सेंस है जो मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, मैं इसके साथ भी पॉजिटिव। इसका मोमेंट इसके अपोजिट है जिसको मैं पॉजिटिव मान रहा हूं अपनी कैलकुलेशन में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? -400 into 75। ये है इंडिविजुअल मोमेंट, इंडिविजुअल लोड्स का मोमेंट अबाउट सेंटर। हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड को भी उतना ही मोमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए लोड से, तभी तो उसको इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड कहते हैं। इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड का मतलब है दोनों एक हमारा रिजल्ट जो ये जो लोड है इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड ये उतना ही लोड है जितना उनका सम है 400 और 900, समेशन F5 भी उतना ही है, और मोमेंट भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है अबाउट सेंट्रॉइड जितना कि इंडिविजुअल कर रहे हैं। So if you equate these two, you will get the answer for E. So E would be यहाँ से आप आंसर निकालेंगे, आंसर आ गया 63.5 मिलीमीटर। This is the E value. ये 63. ये E की वैल्यू है 63.5 मिलीमीटर। अब आपको प्रॉब्लम आसान हो गया ना, एक लोड
और एक एक्सेंट्रिसिटी, दैट्स इट। और आपको पता है ये वाली साइड की कंप्रेशन वाली बनती है। अब आपको सिग्मा मैक्स कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू से 1300 पुट करें, ई की वैल्यू से 65 पुट कर दें। सो यू कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम्स इन दी एक्सरसाइज। एक चीज और भी पूछी जा सकती है, इक्वेशन के अंदर देखें कि मैं आपसे एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है ना, एक तो हमने जो डिस्कस कर लिया, एक क्वेश्चन तो ये हो सकता था, या इसी इक्वेशन को देखें, सिग्मा मैक्स की इक्वेशन को देखें, P गिवन है, क्रॉस सेक्शन भी गिवन है, इफेक्टिव लेंथ भी गिवन है, E की वैल्यू, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू भी गिवन है, और आप सिग्मा मैक्स कैलकुलेट, सबसे आसान। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपसे कहूं सिग्मा मैक्स P के किस वैल्यू पे सिग्मा मैक्स यील्डिंग पे पहुंचेगा, जो हमने अभी कैलकुलेटर के ऊपर एक्सरसाइज कर ली है। एक क्वेश्चन तरीके ये होते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि मैं आपको P की वैल्यू भी दे दूं, लेकिन मैं आपसे कहूं कि किस एक्सेंट्रिसिटी पे जब ये प्लेस होगा तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू यील्डिंग पे पहुंच जाएगी। यानी लोड कांस्टेंट, एक्सेंट्रिसिटी को आप बढ़ाते जाएं, किस E वैल्यू पे आपका ज्यादा एक्सेंट्रिसिटी का मतलब है ज्यादा सिग्मा मैक्स, सेम P वैल्यू को डायरेक्ट इक्वेशन से नजर आ रहा है ना, बड़ी E वैल्यू करते जाएंगे तो इसका बिगर आंसर फॉर द सिग्मा मैक्स। किस E ये वाला बात भी आसान है, ये आप कैलकुलेशन में ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं, आप इसको इजीली सेपरेट कर सकें E की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? So we are done with this columns topic. We need to have a quick look at one more topic related to beams. So please stay with me. Yeah, I would like to use